Today we'll see the moment of inertia. So first we'll see what is inertia. What is mean by inertia? Suppose अगर कोई बॉडी रेस्ट में है एंड हम उसे मोशन में लाने की कोशिश करेंगे तो बॉडी विल अपोज दिस चेंज. Okay, so this is known as inertia of the body. Similarly, now we'll see the moment of inertia. Moment of inertia is nothing but rotational inertia. अगर कोई बॉडी रोटेशन में है, सपोज द अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, रोटेशन में है, तो बॉडी जो है रोटेशन में ही रहने की कोशिश करेगा. इफ अगर हम उसे स्टॉप करने की कोशिश करेंगे तो बॉडी विल अपोज दिस चेंज. ओके, सो दिस opposition is known as rotational inertia. So it is the property of the body due to which it opposes any change in its state of rest or uniform rotation. अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, अगर रोटेशन में है तो रोटेशन में ही रहना चाहेगी. It will oppose any change in that. Let us consider axis of rotation is, say this is the axis of rotation, xx. Axis of rotation is xx. The particle of mass m, say this is the mass m of particle, and this particle is rotating about this axis xx. The particle is at a distance r, perpendicular distance is r. The particle is rotating about this axis xx. So its moment of inertia is, say, I xx is equal to, it is given by mass of the particle into square of the distance, that is r, mr square. Moment of inertia is given by mr square. Let us take another example. Okay, this is the axis of rotation, and let us say mass m1 is at distance, say r1, mass m2 है at a distance r2, mass m3 है at a distance r3. So these all are point masses, or these are the particles having mass m1, m2, m3, and they are rotating about the axis xx. So its moment of inertia is given by the total moment of inertia is equal to I equal to moment of inertia of this particle. So this is m1 r1 square plus moment of inertia of this second particle m2 r2 square plus moment of inertia of this third particle m3 r3 square. Okay, so it is the, we can write this as I total moment of inertia is equal to summation of mass into the radius square. Here r is the perpendicular distance from axis of rotation. So moment of inertia depends upon the mass and the distribution of mass from the axis of rotation. How the mass is distributed from the axis of rotation. Okay, so moment of inertia depends on the mass of that particle
or body and the distribution of this mass from the axis of rotation. Okay. So suppose mass m1 is at a distance r1 पे है, मास m2 is at a distance r2 पे है, m3 जो है r3 के ऊपर है, तो let effective distance is k. मास जो है डिफरेंट मासेस है अलग अलग डिस्टेंस पे, तो लेट अस विल कंसिडर ये सब जो मास है टोटल मास इट इज एट इफेक्टिव डिस्टेंस ऑफ k from the axis of rotation. Then the moment of inertia is written as m into k square. Moment of inertia is written as I equal to m into k square, where k is the radius of gyration. K is radius of gyration. Moment of inertia is equal to m into r square. R is the perpendicular distance from the axis of rotation, or moment of inertia is given by I equal to m into k square. K is the radius of gyration. Okay, so k is the effective distance of this object or the mass from the axis of rotation. This r या this k इसका वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ज़्यादा रहेगा. अभी हमने देखा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल या पॉइंट मास है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं. नाउ विल सी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी. नाउ इट इज़ नॉट अ पॉइंट मास, ये कंटिन्यूअस बॉडी है. तो फॉर एग्जांपल कंटिन्यूअस बॉडी जैसे रॉड है, okay? या रिंग है या डिस्क है, स्पीयर, सिलेंडर. So we are going to see the moment of inertia of rod, ring, disc, sphere, yeah, cylinder. So these are known as continuous body. So there is a, suppose this is the axis of rotation and the body is there. Body is having mass m. Let us will consider a small mass. बॉडी का जो है स्मॉल मास है, लेट अस विल से dm है. स्मॉल मास इज dm and it is at a distance r, perpendicular distance from the axis of rotation is r. Moment of inertia of this small mass is given by, say this is di. Moment of inertia of small mass is equal to, it is mass into this radius square. So mass is dm and radius distance is r square. ये अभी पॉइंट मास नहीं है, इट इज़ अ कंटिन्यूस मास है. तो हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, डी आई को इंटीग्रेट करेंगे. सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटू आर स्क्वायर. तो इसका इंटीग्रेशन जो है, तो अभी ये स्मॉल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इंटीग्रेशन किया तो ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया of this body is equal to dm into r square. So there is a separate procedure for finding out moment of inertia of rod, ring, disc, sphere and cylinder. Okay, but we will not go into the details of this. डायरेक्टली हम लोग जो है इसके जो फाइनल इक्वेशन है वो फाइनल इक्वेशन we are going to use. So first हम देखेंगे metal rod, moment of inertia of uniform rod.
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इम्पोर्टेंट जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन, किस एक्सिस के अबाउट वो ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है रोटेट कर रही है. ओके, सो इन दिस केस we'll take along the axis moment of inertia of uniform rod along the axis passing through its center of mass. axis जो है center of mass से पास हो रहा है and it is perpendicular to the length. तो एक metal rod है, say this is the metal rod, center of mass exactly middle में रहेगा, this is center of mass. तो एक्सिस जो है सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है. एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ. सपोज लेंथ ऑफ दिस रॉड इज एल, इसका जो लेंथ है एल है, इसका मास एम है एंड एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास. इस एक्सिस को हम, this is ICOM. Moment of inertia about this axis is given by I equal to m L square divided by 12. I equal to m L square divided by 12. M is mass of the rod, L is length of the rod. Now we'll see the second case. The moment of inertia of uniform rod along the axis passing through one end of the rod. अभी ये सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा है, इट इज पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड. एक्सिस जो है इट इज पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड. तो लेट अस से दिस इज द रॉड. एक्सिस ऑफ रोटेशन, सो दिस इज द एंड ऑफ द रॉड. इस साइड का एंड लो या दिस एंड. सो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज दिस. दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. रॉड का जो लेंथ है, दिस इज लेंथ ऑफ द रॉड एल, इसका मास जो है एम है एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट द एक्सिस एक्स एक्स. सो दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3. In the first case the axis of rotation is exactly at the पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास. तो रॉड जो है, रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो फिक्स है एंड दिस रॉड इज रोटेटिंग अबाउट दिस. सेकंड केस में वन एंड ऑफ द रॉड, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू द वन एंड ऑफ द रॉड. तो दिस एंड इज फिक्स्ड एंड रॉड इज रोटेटिंग अबाउट दिस एंड. ओके, तो फर्स्ट केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12. सेकंड केस में है एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस में ज़्यादा है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दिस केस इट इज़ मोर, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड बाय 12 है, 12 से डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रहा है. न्यूमरेटर तो सेम है m इंटू एल स्क्वायर. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोर बिकॉज जो मास है, मास इज एट लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. इस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो मास जो है सिमेट्रिकल है दोनों साइड में. तो मास इज नियरर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. इस केस में मास इज फार अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है. रॉड इज वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. रॉड जो है 1D ऑब्जेक्ट है, एक ही डायमेंशन है. लेंथ ऑफ द रॉड, थिकनेस इज नॉट गिवन, देयर इज नो थिकनेस. थिकनेस नहीं दिया जाता है, सिर्फ लेंथ दिया जाता है रॉड का. सो इट इज़ अ वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. तो हम लोग डिफाइन करेंगे अनदर प्रॉपर्टी, मास डेंसिटी. मास डेंसिटी rho is equal to m by L, mass per unit length. Mass density is equal to mass per unit length. तो ये जो mass density जो है it is a material property. ये जो है material property है. Suppose there is a rod 1 of small length.
सेकंड रॉड है, लार्जर लेंथ है, बट ये दोनों रॉड सेम मटेरियल से बनाए हुए हैं, देन इसका जो मास डेंसिटी है एंड इसका मास डेंसिटी बोथ आर सेम, बिकॉज दोनों सेम मटेरियल से बनाए हुए हैं। अगर ये अलग अलग डिफरेंट मटेरियल से बनाए हैं तो मास डेंसिटी इज डिफरेंट। इसका कितना भी लेंथ रहने दो, अगर मटेरियल सेम है तो उसका मास डेंसिटी जो है, आप लेंथ बढ़ाओगे तो उसका मास भी बढ़ेगा, तो मास डिवाइडेड बाय लेंथ, ये जो है मास डेंसिटी जो है सेम रहेगा। ओके, अगर मटेरियल सेम है तो। नेक्स्ट विल सी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग about an axis passing through its center of mass. एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। इन केस ऑफ रिंग, इसका जो मास है, मास जो है सर्कल के सरकमफरेंस पे है, तो यहाँ पे मास है इसका, सो दिस इज मास ऑफ द रिंग इज at the circumference of this circle. So इसका center of mass जो है यहाँ पे, this is the mass of the ring and it is at a distance r. mass जो है at a distance r पे है, so this is the center of mass. axis is passing through the center of mass and perpendicular to the ring. तो ये axis ऐसे है, so this is the axis of rotation. This is called as ICOM, moment of inertia about line passing through the COM and perpendicular to the plane of the ring. तो ये रिंग के परपेंडिकुलर है, इट इज इक्वल टू mr²। इसका जो मास है, इट इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, तो इसका moment of inertia about the axis which is passing through the center of mass and perpendicular to the plane को perpendicular है, तो उसका moment of inertia is equal to mr²। so ring जो है, it is a one dimensional 1D object। 1D object है तो mass density rho equal to मास पर यूनिट लेंथ। 1D ऑब्जेक्ट के लिए मास डेंसिटी जो है मास पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे लेंथ कितना है, इसका टोटल लेंथ जो है L इक्वल टू 2πr। रिंग को अगर कट किया एंड उसको ऐसे स्ट्रेट लाइन में रखा तो दैट लेंथ इज नथिंग बट 2πr, दैट इज अ सर्कमफरेंस लेंथ। इसका सर्कमफरेंस लेंथ कितना रहेगा, 2πr। तो दो रिंग है, सपोज दिस इज अ स्मॉलर रिंग और ये लार्जर रिंग है। मास इज m1, रेडियस इज r1, इसका मास है m2, रेडियस है r2। इफ दे आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल, सेम मटेरियल से बनाया हुआ है, तो इसका जो मास डेंसिटी है इज सेम, मास डेंसिटी इज सेम, ρ1 इज इक्वल टू ρ2। डिफरेंट मटेरियल से बनाया हुआ है, देन ρ1 इज नॉट इक्वल टू ρ2। दोनों अगर सेम मटेरियल से बने हुए हैं तो मास डेंसिटी इज सेम, सेम मटेरियल सेम मास डेंसिटी, डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट मास डेंसिटीज, ρ1 एंड ρ2 आर डिफरेंट। रिंग का मास अलग है, रेडियस अलग है, इसका मास अलग है, इसका रेडियस अलग है, बट बोथ आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, तो उसका मास डेंसिटी जो है सेम रहेगा। नेक्स्ट विल सी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क along the axis passing through its center of mass। एक्सिस जो है सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। एक्सिस जो है डिस्क को परपेंडिकुलर है,
Say this is the disk. This is thickness of the disk. तो ये जो डिस्क है सेंटर ऑफ मास, तो एक्सिस जो है इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, एक्सिस ऑफ रोटेशन passing through the center of mass and perpendicular to the plane of the disk. So its moment of inertia about an axis passing through the center of mass and normal to the plane of the disk is equal to m r square divided by 2. M is mass of the disk, r is radius of the disk. Then moment of inertia is equal to m into r square divided by 2. This is thickness of the disk. ये जो है thickness है. जो disk है it is 3D object. 3D object. Mass density rho equal to, it is mass per unit volume. 3D ऑब्जेक्ट है तो उसका मास डेंसिटी जो है मास पर यूनिट वॉल्यूम. इसका वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. इसका डिस्क का जो एरिया है पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस. पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस इज द वॉल्यूम ऑफ द डिस्क. तो दो डिस्क है, एक स्मॉल डिस्क है, सपोज दिस इज डिस्क, दूसरा बड़ा डिस्क है. इसका मास है m1, रेडियस इज r1. इसका मास है m2, रेडियस इज r2. ये दोनों सेम मटेरियल से बनाए हैं. सेम मटेरियल से बनाए हैं तो मास डेंसिटी ऑफ दिस डिस्क इज इक्वल टू मास डेंसिटी ऑफ दिस डिस्क. डिफरेंट मटेरियल से बनाया है तो मास डेंसिटी विल नॉट बी सेम. विल सी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर. यहाँ पे दो टाइप के स्फीयर्स है, एक है सॉलिड स्फीयर एंड दूसरा है हॉलो स्फीयर. सो दिस इज अ सॉलिड स्फीयर. सॉलिड स्फीयर में उसका जो मास है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. हॉलो स्फीयर जो है उसके सरकमफरेंस में ही मास है, अंदर जो है हॉलो है. सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज नोन एज हॉलो स्फीयर. स्फीयर का दिस इज द सेंटर ऑफ मास या हॉलो स्फीयर का दिस इज द सेंटर ऑफ मास. तो हम लोग इसमें देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रहा है तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. कोई भी एक्सिस आप ड्रॉ करो यहाँ से सेंटर ऑफ मास से, तो दिस इज ऑल्सो एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. ये भी जो है सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है. दिस एक्सिस ऑल्सो पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. इधर से भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है. दिस इज ऑल्सो नोन एज एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर. इसका जो भी डायमीटर है तो आप ये देखोगे दिस एक्सिस जो है डायमीटर कवर कर रहा है. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर. अगर स्फीयर अगर ऐसा है, से दिस इज द स्फीयर और एक्सिस जो है दिस इज सेंटर ऑफ मास एंड एक्सिस यहाँ से पास कर रहा है. एक्सिस अगर ऐसे पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से नहीं जा रहा है, देन इट इज़ नॉट
द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, और ये एक्सिस डायमीटर से भी पास नहीं हो रहा है. दिस इज नॉट द डायमीटर ऑफ द स्फीयर. डायमीटर से पास होना है तो उसको सेंटर ऑफ मास से कंपलसरी पास होना है. सेंटर ऑफ मास से पास होगा तभी वो डायमीटर से भी पास होगा. ओके, तो दिस इज द रॉन्ग वन. तो ये है, these आर द कंडीशंस. तो सॉलिड स्फीयर का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इज 2/5 mr². ये स्फीयर का मास है m, रेडियस है r. ये हॉलो स्फीयर का भी मास इज m, रेडियस इज r. तो हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 2/3 mr². 2/3 mr². तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर का ज़्यादा है? दोनों का मास सेम है, रेडियस भी सेम है. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर सॉलिड स्फीयर. दिस इज इक्वेशन फॉर हॉलो स्फीयर. तो आप देखोगे कि हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ज़्यादा है. यहाँ पे 5 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रहा है. ओके, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर इज मोर देन द सॉलिड स्फीयर, क्योंकि इसके हॉलो स्फीयर में उसका जो मास है वो सरकमफरेंस पे है और इसका जो मास है सेंटर के नज़दीक है या एक्सिस के नज़दीक है. तो इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेस है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ज़्यादा है. Now we'll see the moment of inertia of cylinder. सिलेंडर दो टाइप्स के हैं, एक है सॉलिड सिलेंडर, दूसरा है हॉलो सिलेंडर. सो दिस इज द सॉलिड सिलेंडर. इसका मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब जगह सेम मास है. एंड दिस इज अ हॉलो सिलेंडर. हॉलो सिलेंडर में उसका जो मास है सरकमफरेंस पे है. सो इट इज़ लाइक ग्लास, पानी पीने का जो ग्लास है, इट इज़ द हॉलो सिलेंडर. अंदर जो है पूरा खाली है. ओके, जो भी सॉलिड का मास है वो सरकमफरेंस पे है, आउटर इसमें है. दिस इज सॉलिड सिलेंडर, दिस इज हॉलो सिलेंडर. सॉलिड सिलेंडर को कट करते तो यू विल गेट अ डिस्क. सॉलिड सिलेंडर को कट किया तो डिस्क मिल जाएगा. हॉलो सिलेंडर को ऐसे कट किया तो क्या मिलेगा, इसमें से रिंग मिलेगा, रिंग. सॉलिड सिलेंडर को कट किया तो डिस्क मिल जाता है हमें, हॉलो सिलेंडर को कट किया तो रिंग मिलेगा. रिंग में कैसा होता है, मास जो है सरकमफरेंस पे होता है ऐसे. तो इसका सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इज सिमिलर टू द डिस्क. डिस्क का क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr² डिवाइडेड बाय 2. हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है रिंग के जैसा है. रिंग का कैसे होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr², यानी कि इसका मास है m, रेडियस है r. हॉलो सिलेंडर का भी मास है m, रेडियस इज r. तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सेम एज डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है सेम एज रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सपोज दिस इज द सॉलिड सिलेंडर एंड ये हॉलो सिलेंडर है. अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा नहीं है. एक्सिस ऑफ रोटेशन में यहाँ पे अलोंग द लेंथ था, लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज L, यहाँ पे लेंथ ऑफ द सिलेंडर L है. एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल टू द लेंथ ऑफ सिलेंडर है यहाँ पे. लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन सपोज ऐसे है, सिलेंडर ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा है एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज लाइक दिस. ये भी सिलेंडर का एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है. तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर. तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है लेंथ को परपेंडिकुलर है,
एक्सिस ऑफ रोटेशन लेंथ को परपेंडिकुलर है, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन लेंथ को पैरेलल है। तो पैरेलल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा है। अगर परपेंडिकुलर है, लेंथ को परपेंडिकुलर है, तो उसका कितना रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेट अस विल सी द सॉलिड सिलेंडर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल टू, तो सॉलिड सिलेंडर को कट करने के बाद क्या मिलता है, डिस्क मिलता है। तो इसका हाफ, डिस्क का जो भी है उसका हाफ, डिस्क का कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr² डिवाइडेड बाय 2, उसका हाफ, प्लस ये लेंथ को कट कर रहा है, इट इज़ लाइक रॉड, रॉड को कैसे ऐसे कट करता है, रॉड परपेंडिकुलर टू द रॉड, इसलिए इसको रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऐड करना है। तो सेंटर ऑफ जो भी लेंथ है उसके मिडल से कट एक्सिस ऑफ रोटेशन जा रहा है, तो दिस इज रॉड का जो है ml² डिवाइडेड बाय 12। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी mr² डिवाइडेड बाय 4, 2 × 2 4, प्लस ml² डिवाइडेड बाय 12। सो दिस इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। वैसे ही हम हॉलो सिलेंडर का लिख सकते हैं। ओके, तो हॉलो सिलेंडर में कट करने के बाद क्या मिलता है, रिंग मिलता है। तो रिंग का हाफ, यहाँ पे हमने डिस्क का हाफ किया है, रिंग का हाफ प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। ओके, सो दिस इज अबाउट द सिलेंडर। ओके, सो विल समराइज व्हाट वी हैव कवर्ड। तो हमने देखा है रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया if the axis of rotation is passing through the center of mass, okay, and length को perpendicular है, okay, so this is the rod of mass m, length l, and this is the axis of rotation। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml² डिवाइडेड बाय 12। अगर रॉड का एंड से जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml² डिवाइडेड बाय 3। If it is a ring of mass m, radius r, and axis of rotation is passing through the center of mass and perpendicular to the ring, in that case moment of inertia of ring is equal to mr²। next is disc। ये disc है, of mass m है, radius r है, and axis of rotation is passing through the center of mass and normal to the disc। तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हाफ है। रिंग का mr² है, डिस्क का mr² डिवाइडेड बाय 2, इससे हाफ है। नेक्स्ट इज स्पीयर। स्पीयर में दो टाइप्स है, सॉलिड स्पीयर एंड हॉलो स्पीयर। सॉलिड स्पीयर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5 mr²। अगर हॉलो स्पीयर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/3 mr²। नेक्स्ट इज सिलेंडर। सिलेंडर में भी दो टाइप्स है, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है डिस्क के बराबर है। सॉलिड सिलेंडर को अगर हम कट करेंगे, सॉलिड सिलेंडर को कट किया तो क्या मिलेगा हमें, डिस्क मिलेगा, इसलिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है डिस्क के बराबर है, दैट इज mr² डिवाइडेड बाय 2। हॉलो सिलेंडर है, उसको कट किया तो रिंग, हमें रिंग मिलेगा। तो हॉलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिंग के बराबर है। रिंग का कितना है, mr², तो हॉलो सिलेंडर का भी mr²।